हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली म्यूनिक की एक कॉन्फ्रेंस में हमारे जो विदेश मंत्री है उनसे इंडिया रशिया रिलेशन पर क्वेश्चन किए गए, जिसका आंसर सुनकर जर्मनी की जो विदेश मंत्री है एनालेना और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ सभी लोग हंसने लगे। और ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने इनके क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ना, उसे सुनकर आप भी हंसने लगेंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं स्मार्ट हूं तो दूसरे लोगों को इसमें दिक्कत क्या है, और इतने में ना सब हंसने लगे। समझेंगे पूरे इशू को कि आखिर मामला क्या है, हमारे विदेश मंत्री से कौन कौन से सवाल किए गए और उसका आंसर हमारे विदेश मंत्री किस तरह से देते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करेगी। और आप में से अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड माइंड मैप मिल जाया करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये रहा वीडियो, आप देख सकते हैं। क्वालिटी ज्यादा ठीक नहीं है बट काम चल जाएगा। India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want whenever you want? देखिए, इन मैडम ने जयशंकर जी से ये पूछा कि इंडिया मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के थ्रू नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कभी इंडिया अलायंस चूज करता है तो कभी रशिया को, जैसे कि आप रशिया ऑयल परचेस करते हैं। तो क्या ये आपके अमेरिका के साथ जो रिलेशन है उसके लिए सही है और आप जो चाहते हैं वही हो रहा है? अब ये देखिए कि इसका आंसर हमारे विदेश मंत्री किस तरह देते हैं। Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. no. So. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question: do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Yeah. So I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. It's a very good point. Which सिंपली हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि अगर मैं स्मार्ट हूं और मेरे पास मल्टीपल चॉइस है तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। ये आखिर दूसरों के लिए प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? इस मामले में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया अमेरिका के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए जयशंकर आगे कहते हैं
कि हम एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर किसी चीज की खींचतान को लेकर कितना प्रेशर होता है। एंड ऐसे टाइम में यूनिडायमेंशनल होना बहुत कठिन है। हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों में बिलीव करते हैं, हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका। तो ऐसे में हम गलत कैसे हो सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि आप अलग अलग जगह पर होते हैं, आपके डेवलपमेंट्स के लेवल अलग अलग होते हैं, अलग अलग आपके एक्सपीरियंस होते हैं, एंड यही चीज मल्टीपल ऑप्शन में शामिल होती है। फ्रेंड, जयशंकर आगे कहते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस एंड स्मार्ट पार्टनर्स टेक सम ऑफ दोज चॉइसेस। यानी अच्छे पार्टनर्स आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स लाइक इंडिया इनमें से कुछ ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं। बहुत ही क्लियर कट ये स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री का था, जो इस मंच पर इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर ना आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उठता बैठता है या वहां किसी तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, तो इंडिया को हमेशा जो वेस्ट है वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। इंडिया पे ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, तो इंडिया क्यों रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है? इंडिया वेस्ट के साथ क्यों नहीं होता? इंडिया कभी अमेरिका की तरफ जाता है, तो कभी यूरोप की तरफ, तो कभी रशिया की तरफ। इंडिया कभी नॉन अलाइनमेंट की बात करता है, तो कभी ऑल अलाइनमेंट की। और फ्रेंड्स, ऐसा करके ना ये लोग इंडिया के इंटरेस्ट को चैलेंज करते हैं। इस नई दुनिया में जब इंडिया और अमेरिका के रिलेशन काफी बेहतर हो रहे हैं, इवन आप देखोगे कि इस म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर के जस्ट साइड में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बैठे थे। तब ये क्वेश्चन किया, यानी आप समझ सकते हैं कि इंडिया अमेरिका को किस तरह भड़काया जा रहा है कि इंडिया ऐसा क्यों करता है। फ्रेंड्स, दुनिया में ज्यादातर ये भ्रम फैलाया जाता है कि इंडिया एंटी वेस्ट है, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि नॉन वेस्ट और एंटी वेस्ट में काफी अंतर है। हम नॉन वेस्ट हैं जिसके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, एंड टाइम के साथ और भी बेहतर हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो या और भी कंट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया से ब्रिक्स को लेकर भी क्वेश्चन किया गया था। अगर आप मेरे ब्रिक्स वाले वीडियो देखेंगे तो मैं उनमें हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि आने वाले टाइम में ब्रिक्स बहुत शक्तिशाली संगठन बन के उभरेगा। एंड इसीलिए ये मोहतरमा इंडिया से क्वेश्चन करती है कि क्या चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच ब्रिक्स का उदय क्या वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक चैलेंज होगा? सिंपल इनका कहना यह है कि क्या ब्रिक्स वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ब्रिक्स में इंडिया, चाइना और रशिया जैसी कंट्री हैं जो वेस्ट को काफी क्रिटिसाइज करती है। हमारे विदेश मंत्री इस पर कहते हैं कि ब्रिक्स तब शुरू हुआ जब पूरी दुनिया में वेस्ट का प्रभुत्व था। G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का ग्रुप था और कई देश ऐसे थे जो इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं है, और वे चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इशू है उसमें वे सहयोग कर पाए। यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत दुनिया में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो कि G7 का पार्ट ही नहीं है। ब्रिक्स ऐसे ही देशों का ग्रुप है। वही दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडिया की इस बात को नकारते हुए ये कहा कि हम ऐसी दुनिया नहीं चाहते जहां देश अलग अलग गुटों में बटे हुए हों। बट जो भी हो, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया की आप पोजीशन देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को अमेरिका और जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ बिठाया जाता है, उनके साथ इंडिया से सवाल जवाब किए जाते हैं, और भारत निडर होकर अपनी बात कहता है, जो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।